अच्छा, लास्ट टाइम यू वर डूइंग दिस क्वेश्चन और इसके अंदर ना वो बस पार्ट 2 पे आ जाता है। आई थिंक वो रेट वाला जो रिएक्शन है दैट्स ओवर। और उसके अंदर है कि वो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द केमिकल बिहेवियर ऑफ दिस थिंग इन स्टेप 1। तो हमने ऊपर ना उसने, इफ यू रिमेंबर द लास्ट टाइम देयर वाज अ रिएक्शन मैकेनिज्म दैट वाज गोइंग ऑन। इस सारे को हम हटा देते हैं। ठीक है, सो वो कह रहा है कि स्टेप 1 के अंदर ये बिहेव किस तरह कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस बिहेविंग एज। इफ यू लुक वेरी वेरी केयरफुली यू वुड नोटिस के इन स्टेप 1 what is it doing? It's losing an H plus one ion. कि OH ions थे, OH ion is acting as a base. Why? Because it accepts H plus one ions. ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लो कि if I draw an arrow, तो you would notice कि OH ions यही काम कर रहे हैं. They are basically accepting an H plus one ion. और वो H plus one ion आया कहाँ से है? वो यहाँ से आया because this thing lost or donated an H plus one ion. पहले CH3 था, यहाँ पे जाके it lost the H plus one ion. तो it's behaving as an acid. ठीक है, that is what it's up to. ठीक है, तो इस वाले पार्ट का तो आंसर वही है, डिस्क्राइब द केमिकल बिहेवियर। तो इट्स बेसिकली एसिडिक बिहेवियर और इट्स बिहेविंग एज एन एसिड। ठीक है, और फिर वो कह रहे नेम द मैकेनिज्म अकरिंग इन स्टेप 2 एंड 3। सो यू हैव टू नाउ नेम द मैकेनिज्म के ये कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है स्टेप 2 और स्टेप 3 के अंदर। सो इफ यू लुक वेरी केयरफुली, और जो कुछ ये मैकेनिज्म आपने नहीं पढ़ा हुआ, बट इफ यू लुक वेरी केयरफुली ऑल यू हैव टू डू इज कि bring your knowledge कि there are three types of mechanisms. One is addition, the other one is subtraction. ठीक है, remember कि आपके जितने भी mechanisms हैं they're divided into three parts. uh, और मैं यहाँ पे ना वो तीनों लिख लेता हूँ कि it's addition. The mechanism is addition when something gets added. It's और फिर एक और है कि it's there's substitution. When nothing actually gets added, it gets substituted. And the third one is elimination. तो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स और फिर उनके साथ ना एक वर्ड लगता है विच इज के वो मैकेनिज्म है कौन सा, इज इट अ फ्री रेडिकल और इज इट अ न्यूक्लियोफिलिक और इज इट एन इलेक्ट्रोफिलिक। और इट्स द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक। अब इनकी जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना दो, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट्स अ मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दैट्स अ मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दैट्स अनदर मैकेनिज्म। ठीक है, तो so there would be two words that you would use to describe the mechanism. Now over here इसके अंदर उसने क्या है कि इसका mechanism का ना नाम बताओ। तो the first thing is, can anyone guess step 2, is this addition or what? Addition. ठीक है, because things are getting added। ठीक है, ये जाके उसमें add हो गया, so this is you're going to call this addition। ठीक है, so let's name this addition। और सिर्फ दोनों का क्या है, हम पहले वाले को, the second one is also addition। ठीक है, the second one if you look carefully is also an addition reaction। अच्छा, why is it an addition reaction? क्योंकि water का जो H है ना that went and got added to this place over here। मतलब this was O minus 1, something got added over here। So this is addition, you can't call this substitution, you can't call this elimination। This is also addition, so both of them are going to be called addition। And what type of addition is this? So if you look carefully, this carbon over here has a partial positive charge and the carbon over here has a minus charge। ठीक है, minus is written over there, it has lone pairs। अच्छा, why is this positive? क्योंकि it's bonded to oxygen which is electronegative। ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो ये oxygen is a very electronegative element। खैर ये नेगेटिव कार्बन जो है ना जाके अपने लोन पेयर्स लेके उसके साथ जाके जुड़ गया।
ठीक है, it has gone and bonded with it. And what is this molecule acting as? Is it an electrophile, a nucleophile, or a free radical? Who gets attracted to positive things? Electrophile. नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चीजों से. A nucleophile, ठीक है, a nucleophile gets attracted to positive things. So the name of the mechanism is nucleophilic addition. So this one is, as a nucleophilic addition. Actually, you could actually call it electrophilic as well, because a nucleophile always gets attracted to an electrophile. ठीक है, क्योंकि this one is an electrophile. कि मतलब अगर इसके point of view से, if you look at things from the point of view of the aldehyde, then you're going to notice that this molecule is getting attracted to a negative thing. ठीक है, मतलब इसके point of view से अगर देखोगे ना, this is an electrophile because it's getting attracted to negative charge. Anything that's get attracted to negative charge, that's an electrophile. And this one is a nucleophile. Anything that's attracted to positive charge, that's a nucleophile. So you could call it electrophilic addition. You could also call it nucleophilic addition. It would mean the same thing. वो बस आप किसके perspective से बात करो, that. So I think my guess is both answers for this, they should be acceptable. Just 1 second. Saad is gonna, plus I think we need a data booklet as well. Will be, ठीक है, चेक कर लेंगे. अच्छा, वरना ये clear है? Is this clear to everyone? सारा, is this clear? Ali, clear है? Yes, sir. ठीक है. So Yes, remember, sir. अच्छा, so remember, I'm going to repeat this. ठीक है, there are going to be 3 types of mechanisms, and you'll be asked to. I mean, this question, this mechanism you have never studied. ठीक है. So the 3 types of mechanisms. One is addition, substitution, or elimination. It's very easy to actually figure out which one it is. Addition, things get added. Substitution, things get substituted. Elimination, things get removed. अब फिर वो आगे कि the free radical, nucleophilic or electrophilic. ठीक है. Nucleophile attracted to positive things, electrophile attracted to negative things. Free radical वो neutral atom होता था which had unpaired electrons. ठीक है. uh, और simultaneously, sorry, instead of, इसका बस जल्दी से हम देख लेते हैं कि नहीं, उसने, he is only given nucleophilic addition, so my hunch was कि इलेक्ट्रोफिलिक वहां पे होना चाहिए था. खैर, हमने तो न्यूक्लियोफिलिक लिखा था. उसने कुछ लिखा था कि उसके नहीं, he didn't actually write anything. Had nucleophilic, but I think I would still believe कि electrophilic would be acceptable as well, क्योंकि from its perspective, this is an electrophile. Uh, लेकिन ये इसके साथ आ रहा है, that's why. अब वो reactant, अच्छा हाँ ठीक है, it's nucleophilic. Because this is the reason it's nucleophilic is कि this is the molecule, this was the original reactant. ठीक है, that must be the reason कि this is the original reactant, क्योंकि it was a reaction. अगर हम शुरू में जाए ना, तो बिल्कुल start में what was your original reactant? It was an aldehyde, right? तो the aldehyde was your original reactant. तो आपने उसके perspective से बात नहीं करनी, आपने बात करनी है कि कौन सा molecule आके उसके साथ react कर रहा है, ठीक है, with the aldehyde. That was your original reactant. So that was a nucleophile attacking the original reactant, which is why it's going to be called nucleophilic addition. ठीक है. इसीलिए अगर मैं इसको elaborate करूँ ना इस point को, इसीलिए वो जो बाकी reactions होते थे ना, बस इस point को भी मैं थोड़ा सा elaborate कर दूं.
क्योंकि मार्किंग स्कीम में he did not give the option, ठीक है. So for example, alkenes का reaction होता था, that was electrophilic addition. This was one reaction that you did study. ठीक है कि उसके अंदर there was an HBr molecule which was polar, तो वो it was attracted to the pi electron cloud in the double bond over here, and H was positive. और फिर वो क्या होता था कि the electrons over here would get repelled. अच्छा, now this over here, this molecule over here is an electrophile. अच्छा, why is it an electrophile? Because it is attracted to electrons. And why is it attracted to electrons? क्योंकि उसका H जो है ना, that is positive. So that positive H is attracted to the electrons over here in the double bond. So it's an electrophile. But this other molecule is a nucleophile. ठीक है, that's your nucleophile. Why is it a nucleophile? Because this molecule is attracted to a positive thing. So if it's attracted to a positive thing, it's a nucleophile. Remember, reactions में ना electrophiles और nucleophiles आपस में react करते हैं, ठीक है? ये दोनों इकट्ठे exist करेंगे. ये नहीं होगा कि अगर there's an electrophile तो दूसरी साइड पे it has to be a nucleophile. तभी वो electrophile से attract हो रहा है. Electrophile nucleophile से attract हो रहा है, ठीक है? There's a thing that's attracted to positive charge and there's a thing that's attracted to negative charge. That's why they're attracted to each other. Now the thing is, why do you call this reaction electrophilic addition? Alkenes के जितने भी reactions होते थे, they were called electrophilic addition. But you could have called this nucleophilic addition as well, क्योंकि उनमें से एक nucleophile है. So why do you call it electrophilic addition? क्योंकि आप बात कर रहे हो तो in this with the perspective of the alkene, क्योंकि आप alkenes को study कर रहे हो. ठीक है, जब आप alkenes को study कर रहे हो तो you'll call it an electrophilic addition because who's attacking the alkene? That's an electrophile. ठीक है, तो आप alkene assume करोगे आप खुद alkene है तो आपको कौन अटैक कर रहा है? That's an electrophile. So you'll call it an electrophilic addition. अगर आप HBr के perspective से बात कर रहे होते ना तो that would be called nucleophilic addition. It doesn't really matter, दोनों चीजें ठीक है. लेकिन क्योंकि मार्किंग स्कीम में उसने यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, he was specifically calling this nucleophilic addition. So which is why you have to, this was your reactant, so you have to stick to it. किसके perspective से? What is this? This is a nucleophile attacking the molecule, which is why it's going to be called nucleophilic addition. ये सारा वो clear है? अब ये बात clear है? सारा Yes, अनमित sir. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, now he's asking use the diagram below mechanism for step 2 allowing the relevant curly arrows and dipoles. ठीक है, so you just have to sketch the mechanism और मुझे नहीं पता कि आगे उसने कुछ शो करने को कहा है, which I'm assuming कि उसने बस curly arrows शो करने को कहा है. So this carbon was positive, the oxygen was partial negative. What's going to happen is कि इसके जो lone pairs हैं, that's going to get attracted. The negative over here would get attracted to the carbon over here और ये double bond के electrons जो होंगे further repel हो जाएंगे, ठीक है? So that is what's going to happen over here. So that should pretty much be it. उसके आगे वही चीज उसने शो की हुई है, nothing else. So that's this question. The next one is, this is all about transition metals now. Probably not E naught values भी आ गई हैं, ठीक है? So you're given, he thinks use the data booklet to suggest a suitable metal to carry out reaction number 1. Where is reaction number 1? This one. कि क्या हो रहा है reaction number 1 में? What's happening is कि अगर आप गौर से देखो Cr3 plus is changing into Cr2 plus. और उससे कहा हुआ है कि there's a metal plus H2SO4, ठीक है? Something is happening. But what is basically happening is कि in this, if you look carefully in reaction number 1, there was Cr3 plus over here. And that Cr3 plus has now changed into, it has changed into Cr2 plus. तो अब आपने देख रहे हैं कि कोई suitable metal, तो पहले तो मैं इसकी इक्वेशन लिख लूं यहाँ पे साइड पे कि हमने करना क्या है, ठीक है? Let's keep
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साकिब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर कैन आई बोरो 5 minutes of yours प्लीज? अभी नहीं, अभी तो वो क्लास हो रही है, इसके बाद कर लो। ओके सर। ठीक है, मैं 6:50 पे कर लेते हैं। ओके सर। चलो अच्छा, डेटा बुक निकालो CR3 प्लस CR2 प्लस, ठीक है? तो वी वांट ये वाली इक्वेशन, वैल्यू क्या है इसकी? दैट्स -0.41 वोल्ट्स, ठीक है? कॉपी कर लेते हैं। और बस ये 2 मिनट ब्रेक है, ठीक है, अजान की। अच्छा चल, लेट्स कंटिन्यू के अच्छा, सो बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन के CR3 प्लस, ठीक है? थोड़ा सा लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल CR3 प्लस, दे वांट CR3 प्लस टू चेंज इनटू CR2 प्लस, ठीक है? सो मैंने उधर से इक्वेशन कॉपी कर ली है कि CR3 प्लस, वी वांट CR3 प्लस टू चेंज इनटू CR2 प्लस, व्हिच बेसिकली मींस वी वांट CR3 प्लस टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट वेरी क्विकली के व्हाट आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के you basically measure the tendency of a substance to gain or lose electrons, ठीक है? For example, sodium it has a huge tendency to actually lose electrons. तो सोडियम का मेटल यूज करोगे तो वो फौरन से ना it would start losing electrons and it would start forming sodium ions. ठीक है? It's a very reactive substance, wants to lose electrons and it's going to vigorously lose electrons. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे लूज होंगे and the electrons would all accumulate on this electrode. ठीक है? सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहा है, तो पोटेंशियल कौन सा बिल्डअप होता जाएगा? नेगेटिव, एंड सोडियम इज हाईली नेगेटिव, -2.71 volts, because it has this huge tendency to actually lose electrons. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा, और ये रिएक्शन इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। व्हाट हैपेंस इज कि एक पॉइंट आता है कि इधर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं और सोल्यूशन के अंदर सोडियम आयंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एंड में वो दोनों एक दूसरे को वापस अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, कि मतलब नेगेटिव चार्ज इनडेफिनेटली बिल्डअप नहीं हो सकता। ठीक है? there would be negative charge, there would be electrons accumulating on the electrode, but to a certain extent एक पॉइंट के बाद नेगेटिव चार्ज इतना स्ट्रांग होगा कि इट वुड स्टार्ट पुलिंग द सोडियम आयंस बैक अगेन। तो तब ना रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, वेयर sodium would be losing electrons
but the negative charge on the electrode is so much that the negative electrode would start to attract the sodium ions back again. तो एक point आएगा, equilibrium establish हो जाएगा, and at that point the charge over here would become constant. ठीक है, शुरू में तो lose करेगा, लेकिन एक point के बाद वो stuck हो जाएगा. अच्छा, anyways, what I wanted to tell you was कि negative potential, what does that mean? When do substances get negative potential? They get negative potential, that indicates that they have a very strong tendency to actually lose electrons. तो इसके ना दो rules होते हैं. One is कि lower potential जो होता है, whenever you see a lower potential, that indicates that the substance wants to lose electrons. वो lose कर रहा था, इसी वजह से electrode negative हुआ है. अगर वो lose ना कर रहा होता, उसकी tendency lose करने की ना होती, it would never have been a negative electrode in the first place. यानी if we had another substance, for example, for example, सिल्वर या गोल्ड होता, ठीक है, लेट्स से गोल्ड होता, और सोल्यूशन के गोल्ड के आयंस होते हैं. Now gold ions have absolutely no tendency to actually lose electrons. उल्टा gold ions जो होते हैं ना, they like to gain electrons. वो ion बनाना ही नहीं चाहते. They want to remain in the form of gold. तो gold ions क्या करेंगे, इधर से electrons सारे खुद gain करना शुरू कर देंगे. तो आपकी जो रॉड होगी, मेटालिक रॉड होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी. उसके ऊपर देयर वुड बी पॉजिटिव चार्ज बिल्डिंग अप. एंड व्हाई इज अ पॉजिटिव चार्ज बिल्डिंग अप? क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड आयंस लिए जा रहे हैं, बिकॉज दे लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. और फिर से वही बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज इनडेफिनेटली बिल्डअप नहीं होगा. एक पॉइंट आएगा कि पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो गोल्ड से वापस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी करना शुरू कर देगा. खैर, anyways, the point is कि in this case the potential that's going to build up over here is going to be a positive potential. गोल्ड का पोटेंशियल प्रॉब्ली डेटा बुकलेट के अंदर इज, मेरे नहीं ख्याल इट्स गिवन. सिल्वर का गिवन है, वो काफी पॉजिटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता. खैर, एनीवेज, द पॉइंट इज कि a higher positive potential indicates that the substance doesn't like to lose electrons, it likes to gain electrons. So you have total concept electrochemistry का ये दो चीजें हैं कि a higher E naught indicates that the substance वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहता, वो गेन करना चाहता है. यानी वहां पे ना इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो भी सब्सटेंस है दैट हैज स्टार्टेड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया. So that's the whole concept of electrochemistry. A higher potential wants to gain electron and a lower potential wants to lose electrons. ठीक है, that's the whole of electrochemistry. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, कीपिंग इन माइंड दिस थिंग ओवर हियर. इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लूं. अच्छा, now what we want is कि, अच्छा, and remember कि the substances don't lose electrons on their own. There has to be another substance that gains electrons. Both things would happen together. कि a redox reaction के अंदर if one substance gains electrons, the other one must be losing electrons. ठीक है, one is losing electrons, then there must be someone else that would be gaining electrons. ठीक है, so both things happen together. यहाँ पे क्या हो रहा है? We want chromium 3 plus to change into chromium 2 plus. We want it to gain electrons. ठीक है, so we want it to gain electrons, and we need to select a metal that would help it do it. अच्छा, who gains electrons? According to the electrochemistry, ये जो concept है, that's higher potential is the one that gains electrons. तो इसका मतलब है this must be the high E naught, and there must be some other metal which would be losing electrons. ठीक है, मतलब वो gain कर रहा है, किससे gain कर रहा है? There must be something else that would be losing electrons. Who loses electrons? According to the concept, it's the lower potential. So we're looking for a lower potential lower than minus 0.41 volts. So we need to think of a metal. We need to open the data booklet and look at metals that have lower potential.
Now calcium is a good candidate. ठीक है, cobalt calcium को ही ले लेते हैं. ठीक है, calcium over here is minus 2.87. So if I take calcium, which was right in front of us, so if I take calcium जो है that's 2 plus 2 electrons in equilibrium with calcium, and the E naught is minus. अच्छा, that's minus 2.87 volts. तो ये उससे ज़्यादा lower potential. So that means if you put them together, this is the one that's going to lose electrons. वो relatively higher potential है. That's the one that's going to gain electrons. तो आपका reaction जो है वो complete हो जाएगा. तो उसने पूछा था कि think of a metal that would do this. कि chromium 3 plus को chromium 2 plus के अंदर वो change कर दे. And that's probably going to be calcium. तो say use the data booklet to suggest such a metal. मुझे बस इस पे शक है why they adding H2SO4. तो ये याद क्लियर है सारों को? Yes, sir. ठीक है, सारा इज दिस क्लियर? अली? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, now the thing is कि the only issue I have is what is the H2SO4 doing? तो उससे क्या use the data to suggest a suitable metal to carry out the reaction. Calcium alone would be sufficient. Why do you need H2SO4? इसका चेक कर लेते हैं. Catalyst. नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. Any metal with an E naught value more negative than minus 0.41. Example, मतलब calcium is हाँ, यहाँ पे एक इशू है कि R means reject calcium. Like any value that's more negative than minus 0.41. उसकी one of the reasons that they're rejecting calcium is कि calcium की क्योंकि उसका क्या suitable metal. Calcium की जो E naught value है ना, that's too negative. ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि वो इस पे ना मार्क क्यों काटते हैं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह की ना बात लिखी हुई है, लेकिन वो मार्किंग स्कीम में ना वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कैल्शियम की ई नॉट वैल्यू इज टू नेगेटिव और इनका जो डिफरेंस है ना आपस में, दैट्स टू मच. बस इसका ई नॉट सेल निकालो कि ई नॉट सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. दैट्स हायर पोटेंशियल इज minus 0.41 एंड लोअर पोटेंशियल इज minus 2.87. तो अगर इसको कैलकुलेटर पे करो ना, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी 2.46 volts, I think. Now that's a very high E naught cell. तो सिर्फ मसला ये कैल्शियम चूज करने में, the only problem is कि it's going to be a very vigorous reaction. जैसा सोडियम मेटल जो है ना, मतलब सोडियम मेटल आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है. पोटेशियम को आप रिजेक्ट कर रहे हो. ग्रुप 1 के जो मेटल्स है ना, इनको आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उनके जो रिएक्शंस होते हैं, दे वेरी एक्सप्लोसिव. रिएक्शन होगा तो सही, लेकिन इट वुड बी टू एक्सप्लोसिव. तो कैल्शियम minus 2.87 है, बैरियम जो है minus 2.90 है. अगर आप सोडियम को देखो ना, सोडियम वो इसके टॉप पे होता है, दैट्स minus 2.71. तो इनका जो रिएक्शन है दैट वुड बी टू एक्सप्लोसिव. तो उसने कहा था, तो बस यहाँ पे मेरे ख्याल से सूटेबल की हिंट थी कि सूटेबल मेटल बताओ कि ये ना हो कि वो कोई ब्लास्ट हो जाए. तो रिएक्शन तो होगा, बस वो it won't be a very suitable metal. तो उसने कहा था any metal with an E naught value more negative than minus 0.41. तो उसमें कैल्शियम तो आ गया था, लेकिन उसने रिजेक्ट किया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोसिव हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए वो जिंक वगैरह कोई और चूज कर लो. सो इज दैट क्लियर? Yes, sir. और इसके बारे में ना ये एक दो जगहों पे ना पहले भी हुआ हुआ है, ठीक है. तो इसके बारे में ना मेक अ नोट कि जब वो सूटेबल मेटल कह रहे हैं ना, तो ये सोडियम वगैरह जिनके बहुत ही विगरस रिएक्शंस होते हैं, उनको ना ही यूज करो. Just avoid them. I said then is use E naught values to explain your answer to one calculating the E naught cell. तो वो सारा आप बता दो इसमें.
कैलकुलेट द ई नॉट सेल, वो सब हमने कर लिया, कैल्शियम के लिए किया है, मेटल चेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम उसने रिजेक्ट किया हुआ है। बस आपने ये दो इक्वेशंस लिखनी है, बता दो कि वो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज करेगा, और ई नॉट सेल लिख दो, दैट्स इट फॉर 2 marks. Then, as a student suggested that reaction 2 could be carried out using acidified hydrogen peroxide solution. Use data booklet to show whether or not this reaction is feasible. तो पहले तो वो देखो वो कर क्या रहा है, इट्स acidified hydrogen peroxide, ठीक है, H2O2, और acidified है, acidified means कि there is going to be H+1, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करें, रिएक्शन नंबर 2, which is this one। तो अब इसको ना यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं। रिएक्शन 2 की है कि इधर ना देयर इज Cr3+, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cr2O7 2-, राइट। तो सबसे पहले तो जाके ना वी हैव टू लुक फॉर अ रिएक्शन इन द डेटा बुकलेट जिसके अंदर ना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा हो। तो लेट्स गो बैक एंड हैव अ लुक, और सी में देखें, सी के अंदर, अच्छा सी के अंदर यू हैव दिस रिएक्शन व्हिच इज दिस वन। इस पूरे रिएक्शन को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, सो इट्स Cr2O7 2-, although उसे कॉपी करने को तो नहीं कहा, लेकिन it would be just 1 second, 14H+1 plus 6 electrons in equilibrium with 2 Cr3 plus 7H2O, और E naught value जो है that's 1.33 volts. अच्छा, so ये मैंने यहाँ पे लिखा है। Now we want, I mean the reaction number 2, it wants Cr3 plus to be converted into Cr2O7 2-. तो इस इक्वेशन को किस डायरेक्शन में भेजना है हमने, इसको हमने भेजना है बैकवर्ड में। We wanted to go in the backward direction, and backward का मतलब है we wanted to lose electrons। और हमने क्या पढ़ा था कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। लोअर ई नॉट जो है ना दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, हायर ई नॉट गेन करता है। यानी वो जो दूसरा सब्सटेंस होना चाहिए ना, और दूसरा सब्सटेंस है कौन सा, वो कह रहे हैं एसिडिफाइड H2O2। वो दूसरा सब्सटेंस है, दैट मस्ट बी द वन दैट वुड बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन्स if it's the higher E naught, ठीक है। So we want Cr3 plus to change into Cr2O7 2-, we want it to lose electrons, and who loses electrons, lower E naught, और H2O2 के साथ उसको रिएक्ट कराना है, so that must be the one that would be gaining electrons, and that must be the higher E naught। तो 1.33 से हायर होना चाहिए तभी वो गेन करेगा, वरना वो गेन नहीं करने वाला, और अगर वो गेन नहीं करेगा तो ये लूज नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो आप डेटा बुकलेट में देखो, और H2O2 और H+1 की जितनी भी इक्वेशन नजर आती हैं, see if they are the higher E naught, and they must be gaining electrons, मतलब ये जो चीजें ना, they must be gaining electrons। तो let's start searching for these equations। कि I need to find H2O2, ठीक है। और फॉरवर्ड के अंदर जाना चाहिए, it must be gaining electrons, right? I wanted to gain electrons। तो अभी तक H2O2 कहीं यहाँ पे मिला है मेरे ख्याल से, this one, ठीक है, ये जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, hopefully you can see on the screen। So H2O2 plus 2H+1 gaining electrons, and the E naught is 1.77 volts। ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। Just 1 second, let me copy this equation। So it's H2O2 और एक ही है, ये जिसके साथ मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, that one, plus 2H+1 plus 2 electrons, and in equilibrium with the 2H2O।
and the E naught value is 1.77 volts. किसी का माइक ऑन है? अच्छा 1.77 volts. ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया. अच्छा ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया. तो I wanted Cr3 plus to lose electrons, which it is. ठीक है, lower potential. और ये उसके मुकाबले में this is the higher potential. तो हमारा काम चल गया, ये यानी काम कर रहा है. ये गेन करेगा और वो लूज करेगा. तो इसका मतलब है एसिडिफाइड H2O2 जो है वो ये काम कर देगा आपका. तो इट्स अ परफेक्टली फीजिबल रिएक्शन, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, वो लोअर पोटेंशियल है. वो लूज करेगा, ये गेन करेगा. तो हेंस कौन सा पार्ट था? तो उससे क्या कि यूज द डेटा बुकलेट टू शो वेदर और नॉट दिस रिएक्शन इज फीजिबल. तो आपने सिंपली ये करना है, ये बस कोड करो और बता दो कि ई नॉट सेल जो है ना पॉजिटिव है. इसमें ई नॉट सेल मेंशन करना मस्ट है. मतलब अगर आपने इसका वो देखो, उसका एक मार्क दिया हुआ है, ई नॉट सेल वुड शो, ई नॉट सेल रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है. तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन 1.77 माइनस 1.33, तो वो पॉजिटिव आना चाहिए. इफ इट्स कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मींस द रिएक्शन इज फीजिबल. क्लियर है सारों को? Yes. Yes, sir. अच्छा, बाकी है कि पार्ट सी एक्सप्लेन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स. तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना ये चीज याद रखनी है कि जो लोअर पोटेंशियल है ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और ये रिलेटिव होता है. मतलब ये नहीं है कि एक चीज का 1.8 वोल्ट है. वोल्टेज जो होती है ना वो कोई उसकी जो वैल्यू होती है, दैट हैज एब्सोल्युटली नो मीनिंग. वोल्टेज जो होता है दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस. दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होता है. तो वन इज हायर एंड द अदर वन इज लोअर. पॉजिटिव नेगेटिव doesn't make any sense when it comes to potential difference. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वो फिजिक्स की बात करूँ ना, तो अगर एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर के ना एक साइड पे देयर इज 100 वोल्ट्स और दूसरी साइड पे 200 वोल्ट्स है, तो वोल्टेज की जो वैल्यू है ना दैट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट. रेजिस्टर के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट्स 100, राइट? मतलब हायर माइनस लोअर. वही अगर यहाँ पे 100 होता और यहाँ पे 0 होता, तो अभी भी रेजिस्टर के ऊपर एग्जैक्टली सेम वोल्टेज आ रही है. ठीक है, दैट्स द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो रिमेंबर वोल्टेज की जो वैल्यू होती है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है एट अ पॉइंट, दैट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट एंड दैट्स कंप्लीटली आर्बिट्रेरी. व्हाट रियली मैटर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस, के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना. तो आपने बस हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की टर्म्स में बात करनी है. अच्छा, एनीवेज, लास्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि पार्ट सी एक्सप्लेन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स वेदर और नॉट द रिएक्शन 3 इज अ रीडॉक्स रिएक्शन और नॉट. तो रिएक्शन 3 कहाँ गया हमारा? अच्छा, रीडॉक्स होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, जो कि इस केस में चेंज नहीं हो रही. क्योंकि CrO4 2 माइनस, हाउ डू यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स? कि Cr इज अननोन, दैट्स x. ऑक्सीजन जो होता है दैट्स -2 times 4 and the total charge is -2. और इसको सॉल्व करो तो x comes out to be +6. ठीक है, सो इट्स कमिंग आउट टू बी +6. वही ऊपर आ रहा है, ऊपर भी कैलकुलेट कर लो. Cr2 तो दैट्स x into 2 और -2 times 7 and the total charge is -2. इसको भी सॉल्व करोगे ना, it's going to come out to be 2x is equal to 12 and x comes out to be +6. So that means no oxidation or reduction. आपने बस इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है और बताना है कि पहले Cr2 7 की बता दो, फिर CrO4 -2 की बता दो, और फिर बता दो कि भी चेंज नहीं हो रही. That's it. Make sure you answer your questions properly. ठीक है? अच्छा, then this is about वो Q is equal to IT वाला Faraday constant. कि पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं. एक तो फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q is equal to करंट इनटू टाइम. तो इफ यू हैव करंट एंड इफ यू हैव टाइम, तो आपको ना चार्ज पता लग जाता है इन कूलम्स. रिमेंबर द चार्ज इज इन कूलम्स.
और फिर फैराडे कांस्टेंट होता है। फैराडे कांस्टेंट होता है कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, दैट्स 1.6 टाइम्स 10 पर माइनस 19 कूलम्स। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, आप एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो। सो इफ यू हैव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो how many is 1 mole of electrons? That's 6.02 times 10 power 23 electrons. और हर इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज 1.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 19 कूलम्स है, तो इन सारों को मल्टीप्लाई करो, द एंड रिजल्ट इज कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है दैट्स 96,500 कूलम। इट कम्स आउट टू बी 96,500 कूलम्स एंड दैट्स योर फैराडे कांस्टेंट। यानी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दैट्स योर फैराडे कांस्टेंट। एक उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू L इनटू E। L जो है एवोगाड्रोस कांस्टेंट है, E जो है दैट्स द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एनीवेज this is the only thing that you need, बाकी moles है। So the question is कि a student used an acidified solution of Cr2O7 to electroplate a steel box with chromium metal। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है Cr2O7 Cr2O7 is, इसमें Cr क्या होता है, दैट्स +6 आई थिंक। ये भी हमने कैलकुलेट भी किया था। तो Cr +6 है इस कंपाउंड के अंदर, एंड वी वांटेड टू चेंज इनटू Cr मेटल। वही कर रहा है ना कि वो कह रहे हैं स्टील बॉक्स को इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं क्रोमियम मेटल से। सो वी वांट Cr+6 in this compound to change into Cr neutral metal। तो how many electrons would it gain? It would gain 6 electrons, right? तो ये हमें पता लग गया कि Cr ने ना 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो वही कह रहा है कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर अ करंट ऑफ 0.125 एम्पेयर्स टू डिपॉजिट 0.0312 grams of chromium metal। तो पहला काम तो ये करो कि क्रोमियम मेटल के मोल्स निकालो, कितने मोल्स होंगे। मोल्स इज मास व्हिच इज जो उसने दी हुई है 0.0312। ठीक है, दैट्स गिवन ओवर हियर। उसको डिवाइड बाय करो, अब पता नहीं क्रोमियम की वो क्या है, कहाँ पे है क्रोमियम की AR सॉरी। अच्छा यहाँ पे क्रोमियम ढूंढ लो। सो इट्स 52, एग्जैक्टली 52। तो कोई बता दे कि इसका क्या होगा। इट्स गोइंग टू बी 0.0312 डिवाइड बाय 52। अच्छा एग्जैक्ट 0.0006 मोल्स। अच्छा इसके आगे 0.0006 मोल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए डिपॉजिट सर करने आपने 00 लिखा हुआ है, 000 में? हाँ चलो ठीक है, 0.000। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 0.0006। अच्छा बाकी ये कि फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको डिपॉजिट करने के लिए। 1:6 है, 1 क्रोमियम डिपॉजिट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 0.0006 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितने होंगे, पॉइंट आई थिंक 0036। ये कोई कैलकुलेटर भी साथ साथ करता रहे। अच्छा इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो तब जाके इतना क्रोमियम डिपॉजिट होगा 1:6। 1 chromium needs 6 electrons, so 0.0006 they require 0.0036 moles of electrons। तो इसका मतलब है कि वो जो करंट है उसको कितना चार्ज डिलीवर करना है। फैराडे कांस्टेंट ले आओ बीच में। अब फैराडे कांस्टेंट क्या होता है कि जी हमें पता है कि एक मोल के ऊपर द चार्ज इज इट्स 96,500 कूलम्स। तो हाउ मेनी मोल्स डू वी नीड? वी नीड 0.0036 moles। So what is the amount of charge that would be needed? So that would be 0.0036 moles। मतलब रेशियो यूज करना है, you just have to use ratios। So it's going to be 0.0036 स्टार और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 96,500। ये क्या है? अच्छा 347.4 कूलम्स।
So that means you need exactly 347 point. This is the amount of charge that has to be delivered. तब जाके chromium deposit होगा. और finally उसने he was asking for how long would it take. तो time Q is equal to IT लगा लो. Q is equal to current into time. You know the current, you know the charge. So it's 347.4 and the current is 1.25 amperes. 1.25 amperes multiplied by time t. और इसको सॉल्व कर लो कि अच्छा इसको किससे करना डिवाइड 1.25 तो 277.92 and remember time would come in seconds. अच्छा अब रिमेंबर कि आपने ना क्वेश्चन के अंदर ये जो फैराडे कांस्टेंट है ना किस कन्वर्जन के लिए यूज होता है. फैराडे कांस्टेंट ना एकदम से ना आप मोल्स का क्वेश्चन कर रहे होगे ना यू नो द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन ऑल ऑफ अ सडन कन्वर्ट इट इनटू चार्ज और वो फिजिक्स में आप चले जाओगे. अगर आप फिजिक्स के अंदर Q इक्वल टू IT और चार्ज के अंदर डील कर रहे हो और आपने केमिस्ट्री में आना है तो आप सीधा ना वो चार्ज को मोल्स में कन्वर्ट कर दो. ठीक है फिर वो एक नॉर्मल मोल्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है तो ये रिमेंबर ये जो ट्रांजिशन होगी ना फ्रॉम केमिस्ट्री टू फिजिक्स एंड फिजिक्स बैक टू केमिस्ट्री के मोल से एकदम से आप चार्ज के अंदर चले गए और चार्ज से आप एकदम से मोल्स में आ गए. तो दैट वुड बी दिस इज व्हाट फैराडे कांस्टेंट वुड हेल्प यू इन. और इसमें कि तो खैर मैं बस क्विकली रिकैप कर लेता हूँ कि क्रोमियम के मोल्स वी फिगर आउट द मोल्स, वी फिगर आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी नीडेड, we figured out the amount of charge that those electrons carry, and once we knew the charge we just used Q is equal to IT to figure out the time. ठीक है और रिमेंबर इस तरह के ना सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता. ऑलमोस्ट Q is equal to IT और ये फैराडे कांस्टेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम. चलो ठीक है ये क्वेश्चन हो गया. कल फिर हम ना ये वाला we'll try the next one. ठीक है tomorrow. चले ठीक है ओके देन. सर हाँ जी बात करनी थी सर. आई वाज आस्किंग अगर in case I'm going to opt for MCAT right MBBS सर in case अगर मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आते या मैं ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो सर मुझे फिर एक ईयर का गैप लेना पड़ेगा. मतलब मेरा गैप ईयर आएगा या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अक्टूबर नवंबर में डायरेक्ट. तुमने डॉक्टर बनना है. यस सर. तो खैर एमडी कैट तो करना है तुमने वो उसके लिए तो मेरे ख्याल से मिनिमम बी तो मिनिमम चाहिए. नहीं सर अगर इन केस मेरा बी नहीं आता या मेरे ग्रेड्स ऐसे आते जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं. एक याद रखना गैप ईयर लेना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. एक साल बहुत सारे लोग ले लेते हैं गैप ईयर्स के. एडमिशन ना पहली अटेम्प्ट में नहीं होता क्योंकि अब वो इतनी चीजें करनी पड़ती हैं साथ साथ के वो टाइम नहीं होता कि आप ए लेवल्स अभी कर रहे हो साथ ही वो एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स आ जाएंगे तो प्रॉब्ली आप इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते. तो सर. नहीं लेकिन पहले अटेम्प्ट में सर मैं ट्राई ये तो पूछ रहा था पहली अटेम्प्ट में अगर ट्राई तो मुझे अक्टूबर नवंबर में चांस मिल जाए अगर इम्प्रूव करने का. जैसे मैं मेरे असल में ज्यादा मसला ये ए लेवल्स का जो सबसे बड़ा मसला है ना कि वो पूरा ए लेवल्स देना पड़ेगा दोबारा. एक्सेल मींस एएस ए2 दोनों एक साथ. हाँ दोनों इकट्ठा पूरा देना पड़ेगा क्योंकि वो एएस का एक्सपायर हो जाएगा ना. तो अब ये नहीं पता कि कैम्ब्रिज ने कोई उसमें अलाउंस दी हुई है आजकल, दी हुई है कि नहीं दी हुई. ठीक है सर वो आपसे कहना था सर कि मैं फीस वगैरह 10 डेज लेट कर रहा हूँ सर क्योंकि वो थोड़ा बैंक का मैं जा नहीं सकता सर. मेरे मॉक्स चल रहे हैं. अच्छा चलो ठीक है वो मैं बता देता हूँ. ठीक है ओके सर. चलो अल्लाह हाफिज़. ओके अल्लाह हाफिज़.